Understood? So what have we, what are the conclusions that we have made so far? One is we are doing our displacement dt graph. Okay, in our dt graph, always your y-axis is going to be displacement, always your x-axis is going to be time. So okay, now the first condition case 1 is when body moves, body is stationary. What happens when body is stationary? Straight line parallel to the time axis. Here displacement is equal to 0, therefore velocity is also equal to 0. Why? Because velocity is equal to displacement upon time. Displacement 0 हुआ तो velocity 0 हुआ कि नहीं? Understood? Now we'll come to our case 2. Case 2 we discussed. This is your displacement, this is your time. Time कौन से यूनिट पे दिया है? हमेशा दिया रहेगा. So let's take time in seconds, displacement in meters. Okay, now we have a condition like this. Here, what is the condition here? This is case 2. Case 2, if a body moves, this is the hypothetical case. Okay, if a body moves a distance delta s when no time passes. This is a hypothetical situation, don't forget. This does not exist. No time is passing. So t is equal to 0. Correct? Is it correct? T is equal to 0 seconds. T पास नहीं हुआ, इधर भी हो जो भी है, इधर चेंज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, राइट? T2 माइनस T1 0 सेकेंड्स है. उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सोचो, ये है 1, ये है 2, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ये 4 मीटर. तो ये 1 मीटर से 4 मीटर ट्रेवल किया. सो S2 माइनस S1 क्या होगा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मीटर्स. करेक्ट? So T2 minus T1 is equal to 0. S2 minus S1 is equal to 3. Therefore, delta V will be what? Delta V, or your slope. Slope is going to be 3 upon 0. What is anything upon 0? It is, we will call it infinity, but this is basically, infinity will also mean a number that does not exist. This does not exist in real life. Who is coming now? Wait. Arav. Okay, Arav, turn on your camera quickly. हुआ तेरा selection? अरे very good. Everyone congratulate Arav. चलो, अभी Arav, अभी quick revision for you all, and quickly I will go through it for Arav. Okay, Arav, you can see my screen. Okay, so we are studying graphical representation of linear motion. In fact, we are revising it. So basically we start with what is the slope? Slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1 for any graph. मतलब क्या? मतलब तेरा ऐसा ग्राफ है, ये x एक्सिस है कि नहीं है? ये y एक्सिस है. ये पॉइंट सोच y2 है, ये पॉइंट सोच y1 है. ये तेरा ग्राफ है, ठीक है? ये पॉइंट y2 है, ये पॉइंट y1 है, और ये पॉइंट तेरा x1 है, ये पॉइंट तेरा x2 है. तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस लाइन, बेसिकली एक लाइन कितना सोया हुआ है, this will be indicated by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Always remember this. वैल्यू देंगे या फिर डेल्टा लिखना पड़ेगा. डेल्टा का मतलब पता है तेरे को? क्यों नहीं पता? मोमेंटम पढ़ाया था जब भी मैम ने, क्या बोला था? डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v. हमने ऐसे ही डिराइव किया था ना.
डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, ओके, change of y that is y2 minus y1 upon change in x, समझा? वैल्यूज देंगे जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स करना होगा तभी वैल्यूज देंगे। अभी वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ स्लोप की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सबसे पहले वी आर गोइंग टू टारगेट आर dt ग्राफ। dt ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा y एक्सिस में रहेगा। क्यों रहेगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा y एक्सिस में? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है? जल्दी बता वेलोसिटी का डेफिनेशन। किधर से देख के बोल रहा है? What is velocity, guys? Distance traveled by a body in a particular direction per second. Always remember in terms of rate of change. Rate of change of velocity is rate of change of velocity is this. Rate of change of velocity is acceleration. Correct. Rate of change of velocity basically means velocity. हाँ नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, व्हाट डज रेट ऑफ चेंज मीन? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वन थिंग, रेट ऑफ चेंज मीन्स किस रेट पे चेंज हो रहा है। रेट मतलब कितने टाइम पे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज मीन्स at what rate it is changing. So it basically means at in how much time is the velocity changing. 1 मिनट में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, 3 मिनट में कितना हुआ। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अंडरस्टूड? रेट, दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक. Do you remember? I'll tell you where. Displacement. Displacement. Velocity. हाँ, speed and velocity. चलो velocity. Velocity of a body is distance traveled per second. Page 30 में देखो लिखा है. Velocity of a body is the distance traveled per second by a body in a specified direction. Per second is basically rate of change. समझा? Do you get it? Rate of change always means divided by t. Please don't forget this. These are very basic things. You have to revise these things. अभी मैं इसके पीछे नहीं पढ़ने वाली हूँ. Now I'm moving on. Okay. So yeah. So the first condition that we had. आरव आप भी सुनो, बाकी सब आप लोग भी सुनिए. कहाँ गया मेरा? हाँ. Case 1. Case 1 where when the body is stationary. Body stationary है मतलब क्या हुआ आरव? Stationary है मतलब अगर यहाँ पे no change in its position मतलब displacement is 0. तो फिर वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, टाइम कितना भी हो 0 ही होगा ना. एनीथिंग अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. तो वेलोसिटी भी 0 हुआ. तो ये ग्राफ से हमको क्या पता चलता है? व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. देयरफॉर द लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. करेक्ट? अंडरस्टूड? हेलो, वेर इज दिस आरव फेलो? ए, मुझसे बात कर. समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? समझाओ सबको. क्यों 0 होगा? वेलोसिटी 0 क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो बॉडी स्टेशनरी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So anything upon 0 upon anything is 0. Therefore this is 0. Next condition is, ये मुझे बता. अभी
ऐसा अगर तेरे को कंडीशन बोला है, अ बॉडी इज मूविंग एट अ डिस्टेंस बट देयर नो टाइम हैज पास्ड, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ऐसा हो सकता है क्या कभी टाइम पास नहीं हो रहा लेकिन बॉडी मूव किए जा रहा है? क्यों? तो उस कंडीशन, व्हाई इज इट हाइपोथेटिकल कंडीशन? लेट्स प्रूव इट हियर। सी, टाइम पास्ट इज 0 सेकेंड्स, करेक्ट? ये वाले ग्राफ में देख, टाइम कितना पास हुआ है? 0 सेकेंड। देयर हैज नो टाइम हैज पास्ड व्हिच मींस 0 सेकेंड हैज पास्ड, करेक्ट? यस। एंड डिस्टेंस, लेकिन ये वाला देख डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, ये सोच S2 है, ये S1 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बता मुझे जल्दी। 3 हुआ है, करेक्ट। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3, हमने देखा था ना ये, हम लोग ने स्लोप निकालते वक्त। हाँ, S2 माइनस S1 इन दिस केस इज Y2 माइनस Y1, Y एक्सिस में S है ना, तो S2 माइनस S1 किया मैंने, तो 3 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। केस 2 समझ में आया सबको? अभी ये केस आपके बुक में ये केस 2 के जैसे नहीं दिया है बिकॉज इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दे हैवंट एक्सप्लेन। नाउ लेट्स कम टू अनदर केस व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। दीस आर द केसेस, these type of cases will come in your exams and in your questions, okay? Now let's everyone do one thing, let's draw a graph, ठीक है? ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, कोई जरूरत नहीं है बुक में करने का, आप लोगों को बुक में करवाया है ना मैम ने, और टेक्स्ट बुक में भी है। जस्ट हियर मी आउट राइट नाउ, अभी करने जाओगे तो अभी बहुत टाइम चला जाएगा। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑल्सो, आई विल शेयर इट विद यू, ओके? So case 3 we are taking as, here the body is moving with uniform velocity. If a body is moving with uniform velocity, what does uniform velocity means? Quickly, you should know this. What is the meaning of Shahana? You say. Okay, this is uniform velocity. So when a body is in uniform velocity, graph कैसा होगा? Let's try to see. अभी देखो, अभी सोचो टाइम इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0, ओके? टाइम इज 1, डिस्प्लेसमेंट इज 10 meters. This I am giving in meters, this I am giving in seconds, ठीक है? Now time is equal to 2 seconds, displacement is equal to 20. हुआ ना इक्वल इंटरवल? 2 seconds में 20 मतलब 1 second में 10, 3 seconds में कितना होगा? 4 seconds में 40, 5 seconds में 50, ठीक है? इतना ही लेते हैं। चलो अभी लेट्स ट्राई टू ग्राफ इट, लेट्स ट्राई टू ग्राफिकली शो इट, ठीक? दिस इज 0, दिस इज योर व्हाट एक्सिस? आरव टेल मी, ये एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे रहता है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस, हाँ, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ, तो y अगर ऊपर y चाहिए मुझे, तो हम मुझे डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पे लेना पड़ेगा ना, लॉजिकल, समझ में? स्लोप निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा तो ही मुझे वेलोसिटी मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं टाइम करती हूँ तो मुझे टी अपॉन वी मिलेगा। टी अपॉन वी क्या होता है? 1 अपॉन, सॉरी, टी अपॉन डिस्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन वी। 1 अपॉन वी का वैल्यू निकाल के करूँ क्या मैं? v का वैल्यू निकालना है ना मुझे। v का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या रहेगा? एवरीवन टेल मी, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? हाँ, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, ओके? ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ, अरे ये क्या हो गया? वन सेकंड, हाँ, गॉट इट। नाउ लेट्स ट्राई टू ग्राफ इट। इसको सेकेंड्स में दिया है, ये है हम लोग का टाइम। टाइम कितना है? 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4,
5, 6. Okay, more or less I've tried. I'm doing a freehand work here. Please don't mind. Now 0 के बाद क्या है? 10 meters. करेक्ट. फिर क्या है? 20. फिर है 30. फिर है 40. फिर है 50. Correct, everyone? Is it correct? Now let's try to plot it. Shall we? Now 0, 0. So your first point is 0 and 0. ये तेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. याद रखना ये. अभी देखो, अभी टाइम 1 हुआ, जब भी 1 सेकेंड हुआ तो y कितना हुआ? टाइम इज 1 सेकेंड. सो y इज हाउ मेनी मीटर्स? 10 मीटर्स. सो 1 सेकेंड अगर ये है, ये 10 मीटर्स होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा. क्लियर? अभी टाइम 2 सेकेंड्स है तो डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ, तो ये 20 है, ये 2 है, तो ये 2 इधर जाके लंबा हो एक लाइन बनाती हूँ, इधर 20 का एक लाइन बनाती हूँ, जिधर वो मीट करेगा वो होगा तेरा पॉइंट सी. ए बी सी, चलो इसको ए बी सी डी ई एफ जी, इतना सारा पॉइंट्स है. ये पॉइंट सी हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अभी पॉइंट डी कैसे करेंगे बताओ मुझे. श्रुति, टेल मी व्हाट इज पॉइंट डी. How will I find point D? श्रुति, हाँ, अभी I did not understand. See, I have you understand? Till where did you understand? Tell me, Shruti. Till what point did you understand, dear? ओके ओके ओके, ठीक है, अंडरस्टूड. ये वाला ना मार्किंग समझ में आया. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन. और कोई है यहाँ पे छुपा रुस्तम? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है. सी, श्रुति एंड एवरीवन एल्स, 10, ठीक है, 10 इज योर. सी, बेसिकली यहाँ पे हमने जो बनाए हैं ना, दिस विल बी इन योर एक्स एक्सिस, दीज पॉइंट्स विल बी प्लॉटेड इन योर एक्स एक्सिस बिकॉज टी इज इन योर एक्स एक्सिस. इज दैट करेक्ट? एंड दीज पॉइंट्स, एस का ये पॉइंट्स विल बी प्लॉटेड इन योर वाई एक्सिस बिकॉज वाई एक्सिस इज योर एस और योर डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट? सो एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 मैंने प्लॉट किया. वाई एक्सिस में मैं 10 20 30 40 50 60 प्लॉट करूंगी. अंडरस्टूड? इतना तक समझा? 60 तक. अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली? we extend the two lines. So we will extend the two lines and we will, the point where the two lines from coming from x axis and y axis meet, that is the point of intersection and that is the point we take as your plottable point in your graph. इतना समझा? यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये होगा तुम्हारा पॉइंट बी. क्यों होगा ये पॉइंट बी? क्योंकि 10 से मैंने एक लाइन बनाया. 10 y एक्सिस से 10 है ना, और x एक्सिस में क्या है? 1. तो यहाँ 1 से एक सीधा लाइन बनाया, 10 से एक सीधा लाइन बनाया, इट मीट्स हियर. सो दिस विल बी योर पॉइंट बी. अंडरस्टूड? हेलो श्रुति, अंडरस्टूड? सो नाउ हाउ विल आई plot P? प्लॉट पॉइंट P. पॉइंट P का y एक्सिस से 20 से निकल रहा है एक लाइन. ओके, 20 से निकल रहा है एंड x एक्सिस में 2 से निकल रहा है. 2 इज दिस पॉइंट, 2 से निकल रहा है. सो ये कहाँ पे मीट कर रहा है? 20 और 2 का पॉइंट यहाँ पे. करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट 30 एंड 3. 3 x एक्सिस में 3 से सीधा निकल रहा है, 30 से सीधा निकल रहा है, ये वाला हो गया तुम्हारा पॉइंट. फिर उसके बाद वाला पॉइंट हो गया 40 एंड 4. 4 से स्ट्रेट लाइन, 40 से स्ट्रेट लाइन, ये बन गया तुम्हारा. सॉरी, दिस विल बी 4. ओके ओके, इतना पॉइंट ग्राफ करेंगे तो भी चलेगा. नाउ लेट्स सी, इफ आई जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, एम आई गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन? Am I getting a straight line? Yeah, yeah, correct.
So when a body, case 3 becomes when a body experiences, travels equal displacement or goes through equal displacement in equal intervals of time, or this also means when a body moves with uniform velocity. Is that correct? This is the definition of uniform velocity. Either they can ask you when a body travels equal distances in equal interval of time in the same direction, plot the graph. Or they can say when a body moves with uniform velocity, plot the graph. It means the same thing because uniform velocity का मतलब ही है कि the body travels equal distances in an equal interval of time, equal distances in equal intervals of time in a particular direction. Both of them mean that the body is traveling with uniform velocity. If the body is traveling with uniform velocity, then the displacement time graph will be a straight line. Is it a straight line? It is a straight line. And what is the slope of this straight line? Let's try to find out at this point 40, 20 and 2, 4. Let's try to find out. How will we find out? Tanvi, tell me. Slope of this point. Point A, B, point C to E. क्या होगा? y2 is basically s2 upon s1 in this case, right? Upon t2 minus t1. So what is s2? S2 at this point is how much? 40 minus s1 is 20 upon 4 minus 2. That is equal to how much is it? 10 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड हुआ ना, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है. हाँ, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है. हाँ, so S2 is in meter and T2 minus T1 is in seconds. Correct ना? So 10 meters per second. So this is going to be the uniform the velocity of your body. The uniform velocity of your body is 10 मीटर पर सेकेंड. तो किसी भी पॉइंट पे निकाल बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा. दिखाओ, देखो एक और, ये देख 0 माइनस ये पॉइंट बी पे निकालती हूँ मैं. This will be what? T2 S2 minus S1 will be 10 up minus 0, 10 minus 0, and this will be 1 minus 0, that is 10 upon 1 meter per second. Correct? Yes. So we can basically, why are we using graph as well as this? Because you can, here तुमको दिख रहा है अपने आंखों के सामने कि कैसा लाइन बन रहा है. समझ में आया? There are two ways to verify it. ये भी वेरीफाई कर लिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है. यहाँ से पहले हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पॉइंट्स डिसाइड किया. डिसाइड करने के बाद उसको प्लॉट किया. प्लॉट करने के बाद उसको वेरीफाई किया. समझ में आया क्या किया मैंने? If you people don't talk now, you have to tell me you understood or not. Moving on. Now we are moving on. There are two conditions of a body moving with uniform velocity. So case 3 has two conditions. What will be the condition? One